So continuing with chapter number 4, determinants, we are talking about properties of determinants. Let's quickly move on to some more questions. Let's talk about question number 1. What does this question say? Using the properties of determinants, format क्या होता है question का? Using the properties of determinants and without expanding, prove that. Okay. So in the first question, I have two ways. देखो मुझे equals to 0 लाना है. Equals to 0 लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बहुत स्पेशल. और स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि if any two rows or any two columns becomes equal या same, then the determinant value reduces to 0. Yes or no? Yes. So in this question, first question number 1 के अंदर मैं ये कर सकता हूँ, let's say R1, sorry, column 1 goes to column 1 plus column 2. Yes or no? तो क्या होगा? Yes. X plus A, Y plus B and Z plus C. Then I have A, B, C, and then I have X plus A, Y plus B and Z plus C. Now column 1 and column 3 are equal? Yes, sir. Or no? So determinant value becomes Yes, 0. इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है. एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इफ कोई एक रो या कोई एक कॉलम एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, सॉरी सम ऑफ टू एलिमेंट्स अगर लिखा हुआ है तो हम उसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में बांट सकते हैं. तो इस जहां पे देख सकते हो जो कॉलम 3 है ये सम ऑफ टू एलिमेंट्स लिखा हुआ है, x plus a, y plus b and z plus c. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे इसको? x y z a b c x y z plus x y z a b c and a b c. Yes or no? Yes. Yes, Now, sir. in this case column 1 and column 3 इक्वल, तो ये 0. यहाँ पे column 2 और column 3 इक्वल, तो ये भी 0. तो 0 plus 0 0. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, So sir. using any of the two properties we could solve this question. So a very easy question, of course. Let's move on to question number 2. Question number 2 अगर मैं बात करूं, again look at the pattern. A minus B, B minus C, C minus A. A minus B, B minus C, C minus A. A minus B, B minus C, C minus A. So again very symmetric. Yes or no? So if places change है, बाकी columns जो हैं वो बिल्कुल same है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे केसेस में कौन सा ऑपरेशन सबसे बेस्ट रहता है? R1 पे R1 plus R2 plus R3. बिल्कुल सही. R1 goes to R1 plus R2 plus R3. बात समझ में आ रही है क्या? तो जैसे ही हमने Yes. R1 plus R2 plus R3 किया, देखो क्या मिलेगा मुझे? A minus B plus B minus C plus C minus A. माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा. मैं सॉरी इसको रेड पेन से लिखता हूँ. माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा. तो विल आई बी गेटिंग 0? Yes, sir. 0 and 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, और sir. प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. नाउ अगर फर्स्ट रो के अगर No, sir. एक्सपेंड करेंगे तो मुझे क्या 0 मिलने वाला है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So again a very easy question. You just need to identify what kind of properties we can look for. आगे बढ़ें. Yes, sir. Okay, now let's look at question number 3. अगर मैं question number 3 के बारे में particularly बात करूं तो हम इसे किस तरह से डील करेंगे. देखो very interesting. मैं इसके अंदर एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं. Let's see what is going to happen. मैं अप्लाई करता हूं column 3 goes to column 3 minus 9 times column 2. What will happen? 2 3 5 7 8 9 and you can see 65 minus 9 sevens are 63, 2. 75 minus 9 8s are 72, 3. 86 minus 9 times 9 81, that is 5. Yes or no? Yes. Yes, sir. Column 1 और column 3 Yes, same आ रहा है. Value will be 0. इसी ऑपरेशन में डायरेक्ट मतलब कि माइनस C1 भी कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. तो यहाँ पे 0 0 और 0 आ जाएगा. Yes. ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's talk about question number 4. Okay, इस white पे मैं अगर ये चला रहा हूँ तो दिखाई देता है क्या मार्कर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's see again.
देयर आर टू वेज टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन. पहली बात तो 3 1 नजर आ रहे तो 2 0 बना सकते हैं. ठीक है क्या? तो ये तो हमारे पास Yes. हमेशा रहेगा ही. ठीक है, बट इसके अलावा देखो मैं इस चीज को कैसे लिख रहा हूँ. 1 1 1 BC CA AB. यहाँ पे है AB प्लस AC, यहाँ पे है BC प्लस BA या फिर AB, और यहाँ पे है CA प्लस BC. Now if I say column 3 goes to column 3 plus column 2, तो देखो मुझे क्या मिलेगा. 1 1 1. यहाँ पे देखो AB BC और CA, सॉरी यहाँ पे तो मुझे सेम लिख देना चाहिए. फिर यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, फिर से AB प्लस BC प्लस CA, फिर से AB प्लस BC प्लस CA. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. थर्ड कॉलम से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ रहा है क्या? Yes, sir. आई एम गेटिंग 1 1 1. यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे सेम रहेगा. तो विल गिव में डिटरमिनेंट वैल्यू 0 बिकॉज दो रोज से सॉरी दो कॉलम्स क्या हो गए, सेम हो गए. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, No, sir. sir. सबको समझ में आती है क्या बात? Yes, 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 sir. sir. Yes. Yes, sir. Good. Moving ahead, let's talk about question number 5. Now question number 5 is very interesting. सबसे पहले हमें देखना चाहिए, देखो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है. B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y. अगेन सम ऑफ 2 आ रहा है और तीनों कॉलम्स ऑलमोस्ट सेम है. इंस्टेड A B की जगह P Q R लिखा हुआ है, X Y Z लिखा हुआ है, बट है तो बिल्कुल सिमेट्रिक. So what we can go for is R1 goes to R1 plus R2 plus R3. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Now, if you pay attention, in the first column, what will happen? देखें, 2 बार A आएगा, 2 बार B आएगा और 2 बार C आएगा. Yes. यहाँ पे 2 times P plus Q plus R आएगा. Yes, यहाँ पे sir. 2 times X plus Y plus Z आएगा. Any problem anyone? No, sir. Now, देखें 2 कॉमन आ रहा है क्या फर्स्ट रो से? Yes, sir. A plus B plus C, C plus A, A plus B, P plus Q plus R, R plus P, P plus Q, X plus Y plus Z, Z plus X and X plus Y. Now, मुझे हर जगह देखो राइट हैंड साइड में P Q Y चाहिए, B Q Y चाहिए, C R Z चाहिए, मतलब इंडिविजुअल टर्म्स चाहिए. तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1. तो देखो क्या मिलेगा मुझे, 2 times A plus B plus C, P plus Q plus R and X plus Y plus Z. Now C plus A minus B minus C, तो माइनस का B मिलेगा क्या मुझे यहाँ पे? Yes, sir. यहाँ पे माइनस का Q मिलेगा क्या? और माइनस का Y. Pay attention to this. R2 goes to R2 minus R1. So this minus this, this minus this, and this minus this. Any problem anyone? No, sir. No. No, sir. No, sir. सबको समझ में आती है ये बात? Yes. Yes, sir. Now pay attention to this one. R3 goes to R3 minus R1. ठीक है, इसमें देखें B A plus B minus A plus B plus C, तो मुझे माइनस का C मिलेगा क्या? माइनस का R and माइनस का Z. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Now देखो सेकंड रो से माइनस कॉमन आ रहा है, थर्ड रो से भी माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या बाहर? Yes, sir. यस. अब देखो यहाँ पे मुझे A चाहिए सिर्फ और सिर्फ, B और C हटाना है. यहाँ पे मुझे सिर्फ P चाहिए, Q और R हटाना है. यहाँ पे मुझे सिर्फ X चाहिए, Y और Z हटाना है. सर आपको कैसे पता चल रहा है? मुझे यहाँ से पता चल रहा है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कोई बताएगा मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए मुझे यहाँ पे ऑपरेशन?
R1 minus R2 plus R3. R1 goes to R1 minus R2 minus R3. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है समझने में? No, sir. No, sir. So 2 times what I will be getting is A, B, C, P, Q, R, and X, Y, and Z. That is equals to my RHS, hence proof. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. No, sir. So interesting question. काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Let's talk about question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Yes. Yes, sir. है क्या? Yes, sir. देखो Yes. ए का, सॉरी, ए का, ए का माइनस ए हो रहा है, माइनस बी का बी हो रहा है, माइनस सी का सी हो रहा है, और हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं कहता हूं लेट्स से जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो क्या है? 0 a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी एंड 0. नाउ हमने एक चीज सीखी थी, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से कभी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू बदलती नहीं है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मैं Yes, इसको लिख sir. सकता हूँ 0 a minus b, my first row becomes first column, my second row becomes second column, and my third row becomes third column. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now I am saying first row से माइनस कॉमन लो, सेकंड रो से माइनस कॉमन लो, और थर्ड रो से माइनस कॉमन लो, तो मेरे को एक ओवरऑल -1 मिलेगा क्या बाहर? Yes. 3 बार 1 आया है, 1 -1 -1 -1, तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, तो 0 a minus b, minus a 0 minus c, and b c and 0. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, ये sir. दोनों सेम है क्या? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. So determinant value is equals to minus of determinant value, इसका मतलब 2 times delta is equals to 0. So delta is equals to 0. कोई समस्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, no, sir. समझ में आती है बात हमें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। देखें 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन में मुझे 4 times a square b square c square चाहिए। सो पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लिया जाए, काफी कुछ कॉमन आ रहा है। सो रो 1 में से a कॉमन आ रहा है, रो 2 से b कॉमन आ रहा है, और रो 3 से c कॉमन आ रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. a b c minus a b c, a minus b c, a b minus c. Now if you can see, फर्स्ट कॉलम से a कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से b कॉमन आ रहा है, और थर्ड कॉलम से c कॉमन आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1। नाउ इतने सारे 1 आ रहे हैं, जीवन कितना आसान है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हम क्या कहेंगे? r1 goes to r1 plus r3, r2 goes to r2 minus r3। कर सकते हैं कैसा? 2 zeros बना लेंगे। Yes. Yes, sir. What I'm getting is a square b square c square, Yes, sir. यहाँ पे 0, 1 plus 1 2, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, -1 minus 1 minus 2, and then 1 plus 1 2,
1 minus 1. Sorry, 1 1 minus 1. No problem. No, sir. Now column 1 के क्रॉस एक्सपैंड कर दें. No, sir. So a square b square c square into 1 into 2 2s are 4 minus 0. That is equals to 4a square b square c square. Yes or no? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes. So a very easy question. कोई तकलीफ किसी को भी? No, No, sir. sir. Let's move ahead. Let's talk about use of determinants. बहुत सारे uses हैं, but particularly जो uses हमें दिए हुए हैं वो है दो. पहला, to find area of a triangle whose vertices are given. Secondly, concept of collinearity. And third is equation of line using determinants. Okay. So to find out area of a triangle, तीनों के concept बिल्कुल same है. Area of triangles जिसके vertices हमें given है. Concept of collinearity. What is collinearity? When three points are collinear. If area of triangle is 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था Yes, sir. कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा डेफिनेटली. एंड देन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइंस भी निकालते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, तो एक ट्रायंगल है लेट्स से जिसकी वर्टाइसेस हैं x1, y1, x2, y2 and x3, y3. Is this red pen visible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but still Yes, I will sir. do. So area of triangle is given by half of x1, y1, 1, x2, y2, 1 and x3, y3, 1. Any problem, anyone? No, No, sir. sir. No, sir. This is the Yes, formula. sir. अगर तुम्हें याद हो, हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे जिसके अंदर 10th क्लास में तुम फॉर्मूला पढ़ते थे x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y3. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाफ. वो फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है. अगर तुम इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस एक्सपैंड कर दोगे तो तुम्हें यही मिलेगा एग्जैक्टली सेम. x1 into y2 minus y3. फिर x2 की जगह माइनस x2 लिखेंगे हम. क्यों? जगह ही ऐसी है. Yes, sir. तो Yes, y1 sir. minus y3 का y3 minus y1 हो जाता है and then x3 का y1 minus y2. So we get the same formula. So कुछ भी नया नहीं है, right? So Yes, ma'am. Yes, sir. but exercise 4.3 निकालते हैं and let's talk about some questions. उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अटेम्प्ट करेंगे सब लोग. एक्सरसाइज 4.4 सॉरी 4.3 question number 1 part 1. Very simple question. Can someone please tell me the page number? 22. 122. Okay, got it. So what does it say? Find the area of the triangle with vertices as 1, 0, 6, 0 and 4, 3. Can we find out the area? 1, 0, 1, 6, 0, 1, 4, 3, 1. Now, across which row or which column are you planning to expand? Column 2.
कॉलम 2, यस और नो? तो जब 3 की बात करूंगा हाफ Yes, आएगा sir. आगे। ओके, मैंने एक छोटी सी चीज मिस कर दी, प्लीज ध्यान दें, यहाँ पे मॉड्यूलस भी आएगा। Why? Because area is never negative. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. जो भी एरिया आता है हम उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। नाउ ये आंसर मुझे जो मिलेगा 1/2 इंटू, जगह ही ऐसी है तो -3 आएगा, and then 1 - 6. Any problem anyone? No, sir. So Yes, 15/2 square units. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Similar are the part second and third, you can easily attempt them. Let's talk about question number 2. What does question number 2 say? Show that these points are collinear. तो मैं कहता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इन 3 पॉइंट से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A B plus C 1, B C plus A 1, and then C A plus B 1. अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन तीनों से जो बनेगा वो 0 होगा क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. देखें अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 0 बनता है, राइट? नाउ इफ आई से मुझे इसको 0 शो करना है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हमें पता है क्या? कॉलम 1 गोस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? Yes. तो मुझे क्या मिलेगा? A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. Now you can see first column से A plus B plus C कॉमन आ रहा है क्या? Yes, sir. So half of A plus B plus C. Now you can see first column भी 1 1 1, third column भी 1 1 1, second column सेम रह रहा है, तो दो कॉलम सेम हो गए, इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0, area of triangle is 0. Yes, sir. Since area of triangle is 0, points are collinear. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. So very easy concept as such. किसी को कोई खास प्रॉब्लम समझने में इसे? No, sir. Sir. ओके, मैं वैसे भी इस एक्सरसाइज को फ्री एक्सरसाइज मानता हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ भी खास नहीं होता, सिंपल हमें बस पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से लिखते हैं। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पर्टिकुलरली वन क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे काफी अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ कि बच्चा गलती कर सकता है इसके अंदर, एंड वो गलती क्या है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की बात करता हूँ। वो मुझे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 एंड द वर्टाइसेस आर। तो मैं कहता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 4 है, ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू है -2 0 1 0 4 1 0 a 1, ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू हाफ ऑफ इस डिटरमिनेंट वैल्यू है, ये जो है ये +-4 आएगा। दिस इज द प्रेशर पॉइंट। क्यों +-4 आएगा? बिकॉज व्हाट आई हैव इनिशियली इज मॉड। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 4 आती है तो भी मैं एरिया 4 कहता हूं, और डिटरमिनेंट वैल्यू -4 आती है तो भी एरिया +4 कहता हूं। यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. the pressure point for these questions is that we will get always 2 values of k. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is why +-4। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Now Yes, sir. to solve this, half of फर्स्ट कॉलम के क्रॉस एक्सपेंड करेंगे, -2 into 4 minus k is equals to +-4। 2 से 2 कैंसिल, आई एम गेटिंग k -4 as +-4। एक बार प्लस ले लेते हैं, तो k is equals to 4 + 4 8। एक बार माइनस ले लेते हैं तो k is equals to -4 + 4
0. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. No, सबको sir. समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. So we will always get two values of k. Now, fifth question is still same. If the area of the triangle is 35 square units with vertices this much, then k is. Again, हम क्या करेंगे? Plus minus 35 लिखेंगे area में. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving on to question number 4. वो मुझे बोलता है find the area of find the equation of the line using determinants. Okay, तो मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है which is passing through 1, 2 and 3, 6. Okay, जब भी हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम क्या एक नया पॉइंट मानते हैं कि इसके ऊपर x, y which is the general point? Yes or no? Yes, sir. कि इस लाइन पे Yes. कोई भी Yes. जनरल पॉइंट है मैं उसको क्या मान लेता हूँ x, y. नाउ मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone, please understand. मैंने क्या कहा 1, 2 और 3, 6 से लाइन पास करानी है. मैंने कहा इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट हम किस तरह से लेते हैं? x, y लेते हैं. अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए. Yes. इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0. Yes, sir. So what will I say? Half of x, y, 1, 1, 2, 1 and 3, 6, 1 is equals to 0. तो ये हाफ तो गया 0 के अंदर. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सपैंड Yes. कर देते हैं. x multiplied by 2 minus 6 minus 4. फिर माइनस y. माइनस क्यों लिख रहा हूँ माइनस y की जगह? सॉरी y की जगह ही ऐसी है. चलिए ऐसे. Then 1 minus जगह 3 yes, sir. minus 2 plus 1 into 6 minus 6, 0. Any problem, anyone? No, sir. No, So I'm getting sir. minus का 4x plus का 2y is equals to 0. So 2x is equals to y आ रही है क्या लाइन की इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट करके बताओ फटाफट. कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सबको? Yes, 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 sir. sir. ओके. इसका सेकंड पार्ट क्या है? अगेन सेम क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, 1 and 9, 3. एक पॉइंट और मान लेंगे x, y. And now these 3 points are collinear. So I'll get x, y, 1, 3, 1, 1, 9, 3 and 1 is equals to 0. Yes or no? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. So minus का 2x plus का 6y plus 0 is equals to 0. So x is equals to 3y. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. No, sir. That is it. And this exercise is complete. So it's a very easy exercise. 1 mark questions बनते हैं यहाँ से. और बहुत ही सबसे prominent question जो है वो है question number 3 या फिर question number 5. ओके, जहाँ पे हमें k की वैल्यूज निकालनी होती है. एरिया गिवन है तो उसका प्रेशर पॉइंट क्या होता है? वी विल ऑलवेज गेट 2 वैल्यूज ऑफ k. प्लस माइनस दोनों आएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड. आगे बढ़ते हैं. आज हेडिंग डालेंगे. ओके, नो, विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट सेक्शन. ओके.